So how are you guys? Okay, so today we are going to talk about muscle gain. Okay, so muscle gain is a very controversial topic. So लोगों के 100 अलग views हैं इसके ऊपर. But again, मैं इस चैनल पे अपने views के बारे में I don't give a shit about what I feel, what the nutrition of muscle gain. It doesn't matter what I feel. The only thing that matters is science, research, the fact that like the proven things like gravity, like this is gravity, right? You can't say that there is no gravity. There are people who say that also, but okay. So you believe on science. So quickly we'll discuss about some commonly said things by gurujis and fitness trainers if you want to gain muscle, which are totally crap. Okay. The first is buy the muscle gainer. No need. Why? You'll get to know. Carb loading is very essential. Second thing, okay? High reps burns fat and grows muscle. No. And last is इंजेक्शन ले ले भाई, कुछ हो जाएगा. और बेटा ये तो कतई मत करना, ऐसे तो कभी बनने ही नहीं रही तुम्हारी बॉडी भाई, सूजन लग जानी है हाथ पे. ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिस पे वो निर्भर करता है और जो हमें करनी चाहिए, अगर वो नहीं करें उसमें से एक भी चीज़ मिस आउट होती है तो मसल ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड हाइपरट्रोफी. हाइपरट्रोफी मतलब आपके जब मसल सेल्स का साइज़ बढ़ता है. आप सेलुलर लेवल पे सोचिए, सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ऐसे पूरी बॉडी बनती है. तो आपको अगर अपने मसल साइज़ बढ़ाना है तो आपको सेलुलर लेवल पे मसल सेल का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा. जब मसल सेल का साइज़ बढ़ेगा तो वैसे टिश्यू बढ़ेगा एंड देन मसल्स की ग्रोथ होगी. ओके, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरट्रोफी. शुरू में वीडियो के शुरू में एक क्लासिफिकेशन कर देता हूँ. 2 चीज़ें होती हैं. मसल ग्रोथ कैन बी डन बाय 2 ways. ओके, एक होता है कि आप जिम जाके टेढ़ी मेढ़ी एक्सरसाइजेस मार रहे हो, मसल डैमेज हो रहा है, मसल रिकवरी हो जाएगी. अगर आप प्रोटीन और न्यूट्रिशन सही दे रहे हो तो मसल ग्रोथ हो जाएगी. दैट इज़ वाई यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू द जिम हु हैव ग्रेट फिजिक्स बट देयर परफॉर्मेंस लेवल इज़ नो वेयर. सो you must have always heard the word big and strong. Everybody wants to be big and strong. There's psychology there. Like that doesn't go, right? But there are people who are muscular, who are big, but they are weak. They do not perform. So there are 2 things. अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कि Lamborghini की तरह दिखना चाहता है, but want to perform like Maruti modified Lamborghini, which will go to mind-boggling speed of 80 kilometers per hour, or you want to perform like a Lamborghini and be a Lamborghini. So if you are the latter one, stay to the video because I am going to talk about performance here, how it affects the muscle growth. Okay, so the first thing that we need to understand before we proceed into the video is the concept of workload. ये workload concept मैं अपने chapter 1 part 2 के वीडियो में न्यूरोसिस्टम एंड मसल रिक्रूटमेंट में कवर कर चुका हूँ. So people who are watching this video who haven't seen that video, I will drop the video in the I button. Please go and check out the video so that you will understand better. Workload का मैं brief फिर भी दूंगा इस वीडियो में. Workload is basically the load which you put on your muscles and उसके reaction में आपका muscle grow करता है. That is called workload. और workload के 4 factors होते हैं to make sure that कि आपने workload अपने muscles पे दिया है, which are poundage कि वेट बढ़ाया, which is range of motion, speed and repetitions. ओके, सो अगर आप 10 किलो का बेंच मार रहे हैं और आपने 20 किलो कर दिया तो पाउंडेज बढ़ा, मतलब वर्कलोड का फैक्टर बढ़ा. रेपिटेशन ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. आप 10 से 12 निकाल रहे थे, 20 से आप 6 या 8 निकालोगे. ठीक है, 2 फैक्टर्स हो गए. अब उसके अंदर आप आधी रेंज ऑफ मोशन मार रहे हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब दैट इज़ नो गुड. सो यू हैव टू गो फुल एंड योर रेंज ऑफ मोशन शुड बी फुल एंड अप लॉक योर एल्बोज. And the last is speed. You need to maintain that speed or increase the speed to impose the load on your muscles. Okay, इसके reaction में muscle grow करता है. So this was the concept of workload. To understand it better, watch the video. So hypertrophy tripod बोलते हैं. Hypertrophy का मतलब होता है muscle growth, muscle cell का size बढ़ना, जैसे हमने बोला. ओके, तो हाइपरट्रोफी के 3 पैर होते हैं. ठीक है, मसल ग्रोथ के 3 पैर होते हैं. उसमें से एक भी पैर मैंने हटा दिया तो वो गिर जाएगा. ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा. ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइपरट्रोफी ट्राइपॉड. इसके अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं. प्रोग्रेसिव ओवरलोड. प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अंदर वर्कलोड ही आता है. प्रिंसिपल, ये दिस प्रिंसिपल इज द मदर ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स.
आप कोई भी एथलेटिक्स में हो, आप रनिंग में हो, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ में हो, फ्लेक्सिबिलिटी में हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हो, दिस वर्क्स एवरीवेयर. यू पुट योर बॉडी इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट, द बॉडी विल हैव टू ग्रो. लाइक सपोज आप 20 किलो की बेंच मारते हो, आप अगले हफ्ते गए आपने 25 किलो कर दिया. नाउ योर मस्कुलर सिस्टम एंड योर CNS इज कंफ्यूज दैट दिस इज समथिंग न्यू. I will have to use more muscles to lift this weight, because अगर आपने ज़्यादा muscles recruit नहीं करे, barbell will fall on you and you might hurt yourself. So for that, with that fear, with that caution, your brain, your CNS recruits more muscle fibers of your pectorals or whatever the muscles are working, supporting muscles and the main muscle, target muscle. इससे मसल फाइबर्स ज़्यादा रिक्रूट होते हैं एंड जितने ज़्यादा मसल फाइबर्स रिक्रूट होंगे उतना ज़्यादा मसल रिपेयर होगा. ये हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था. यू कैन स्टिल गो देयर एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, तो आपको बेटर समझ में आएगा ये. ओके, तो आपने ज़्यादा मसल टेयर हुआ है तो ज़्यादा रिकवरी भी होगी. ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू वेयर एंड टेयर मसल्स का सबसे ज़्यादा होना चाहिए. हाउ डू वी डू दैट? प्रोग्रेसिव ओवरलोड. प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब आप वर्कलोड है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. वो चारों फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए वर्कलोड के. ओके, दैट इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर आप अगेन 20 से आप 25 किलो मारने लगे बेंच, देन दैट आपने वर्कलोड का पहला फैक्टर इंक्लूड कर लिया, पाउंडेज. रेपिटेशन ऑटोमेटिकली गिरेगा. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा. रेंज ऑफ मोशन शुड बी फुल एंड लास्ट इज स्पीड. इन दोनों, ये चारों फैक्टर्स अगर आपने इंक्लूड करे तो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा. एंड द पॉइंट, द टाइम व्हेन यू स्टार्ट डूइंग 12 repetitions with 25 kgs, then again you jump to 30 and then 30 पे आप चारों वर्कलोड के फैक्टर्स इंक्लूड करोगे. That is how you do progressive overload. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे नेचर में होता है. लाइक हमारे हाथ में यहाँ पे कैलस भी बन जाते हैं. मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था. क्यों? क्योंकि आपका हाथ छिलता है पहली बार जम जाते हो तो खून आता है. आपके ब्रेन को लगता है कि यार दिस इज़ हर्टिंग, तो वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको रिपेयर करता है और हार्ड बनाता है ताकि वो उतना लोड बेयर कर पाए. उतने लोड को वो बेयर कर लेगा, बट अगर आपने फिर से लोड बढ़ाया तो वो फिर से छिलेगा, फिर उसके लिए वो और हार्ड स्किन बनाएगा. ऐसे करते करते ये बहुत हार्ड हो जाता है. इन द सेम वे जब हम लोड बढ़ाते हैं, हम अपनी बॉडी को नए एनवायरनमेंट में डालते हैं. हम कार्डियो में हम HIIT करते हैं, राइट? उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं. वी पुट आवर बॉडी इनटू न्यू टेंशन. बॉडी विल रिमेन विद नो अदर ऑप्शंस बट टू ग्रो, टू परफॉर्म दैट मच ऑफ परफॉर्मेंस. 30 किलो वो नहीं कर पाएगी अगर वो परफॉर्म ना करे, ज़्यादा मसल रिक्रूट ना करे. तो इट विल हैव टू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग, सेकेंड लेग ऑफ द ट्राइपॉड. Nobody takes this one very seriously, but it is one of the most essential things. Rest and recovery. हम कैसे रेस्ट कर लें भाई? हमें तो 6 दिन 2 बार वर्कआउट करना है, दिन में 2 बार 6 दिन करो. तो इंजरी हो जाती है तो रेस्ट नहीं देते, उनको वर्कआउट करना है. नहीं होती तब भी उनको वर्कआउट करना है. दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी. You have suppose gained a lot of, you have gone to the gym and you have done the progressive overload. आपने पहला पॉइंट कर लिया, आपने वर्कलोड के चारों फैक्टर्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड करा. अब आपका मसल, अगर पिछली बार सपोज चेस्ट के 100 मसल फाइबर्स डैमेज हुए थे, आज 200 हुए हैं. बॉडी नीड्स रेस्ट. आप उसको रेस्ट ही नहीं दे रहे हो. And then you are expecting the body to grow and perform also. It will never happen. The growth will never happen. You have to let your body to make that transition with the proper kind of rest and recovery. So you have to need to take rest. You have to sleep and you have to take the quality sleep जो अपने मसल फाइबर्स डैमेज करें ताकि वो रिकवर हों. तो जब वो रिकवर होंगे तो उनका थोड़ा सा साइज़ बढ़ेगा और उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी. सो द लास्ट लेग इज़ न्यूट्रिशन. ओके, सो न्यूट्रिशन में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड ऑलवेज हैव proteins and fats in your diet. You should discard carbohydrates from your diet because carbohydrates will always make you fat. तो काफ़ी लोग जो कार्ब लोडिंग करते हैं उनका क्या प्रॉब्लम, उनका सीन क्या होता है कि वो 10 किलो बढ़ाते हैं वज़न, उसमें से 6-7 किलो फैट होता है और बाकी का मसल होता है. सो even if you consume high protein and moderate fat, like protein to fat ratio 2:1, you might realize that आपको ऑप्टिकल रिजल्ट्स थोड़े से लेट दिखेंगे. आपको कार्ब लोडिंग में ज़्यादा इसलिए दिखते हैं बिकॉज में फ़ैट कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है और बंदे को लगता है कि हाँ मेरा साइज़ बढ़ रहा है. आपका इसमें फ़ैट कंज्यूम नहीं होगा. ठीक है, आपको 5 महीने 6 महीने में अगर आपका 5 किलो वज़न बढ़ा है तो वो 5 किलो प्योर मसल होगा, उसमें फ़ैट नहीं होगा.
ओके तो वो कार्ब लोडिंग करके पहले बढ़ाते हैं एंड देन दे कट ऑल द फैट. सो व्हाट्स द सेंस? It will have more health issues also. It will screw up your insulin sensitivity also. Even if you plan to go on a carbohydrate and protein diet, so your protein and carb ratio should be 1:1. Never ever go on a high carb diet. Protein will always recover your muscles, carbs will never. Now if they're talking about protein sparing effect, we are sparing the protein with fats. Fats are giving us energy, so there's no issue with that. So whatever you do under the guidance of someone. Please be safe. And about gainers, you shouldn't be having gainers because उसके अंदर हमेशा carb to protein ratio is 4:1. 4 is carbohydrates, 1 is protein. So by the end of the डब्बा तुम्हारा सिर्फ फैट ही बड़ा होगा, मसल कुछ नहीं होगा, तुम्हें पेट भर जाएगा और तुम फैल से जाओगे और तुम्हें लगेगा मैं तो भाई साइज बढ़ गया मेरा. That's all. Do not forget to like the video and share the video with your friends, and also check my Instagram. Link is in the description. I post some cool stuff there. We post some cool fitness memes there and recipes there and transformational pics there, so you would learn a lot of things. And we also do polls for the next videos that I would want to do on YouTube. And subscribe if you're new. Okay. कि जो टेस्टोस्टेरोन फ्लो है एक्चुअली वो नीचे से ऊपर हो रहा है और लोग ये चीज को समझ चले. को बोलता हूँ कि जब नी और पेल्विक बोन के बीच वाला मसल से खेलना है आपको, तो आपको नी की और पेल्विक बोन की जरूरत क्या है? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो.